and welcome back to my channel. तो इतने दिनों से I have not been able to post a single video because I was literally so stressed with this college का admission thing because I mean इतने सारे मेरे ख्वाब हैं. I mean we are Bollywood desi kids and we have grown up watching Karan Johar movies, so it's like I have this Karan Johar college life in my mind with the student of year and everything, but MBBS कॉलेज से मेडिकल कॉलेज से ये सब मांगना इज़ लाइक आस्किंग फॉर अ लॉट बिकॉज इट्स ऑब्वियसली अ वेरी टफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ अकेडमिक्स एंड यूजुअली मेडिकल कॉलेजेस में उतने एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं होते हैं and they usually focus on पढ़ाई only, पढ़ाई and a lot of पढ़ाई. I mean it's not like BTech or BBA where you have a diversity of students and because of that they also have to publicize the college. बट मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा नहीं है. उनकी रेप्यूटेशन उनके एकेडमिक्स से होती है, ना कि उनके एक्स्ट्रा करिकुलर से. तो आस्किंग फॉर अ करण जौहर कॉलेज लाइफ इज अ लॉट, बट वी आर स्टिल गोइंग टू ट्राई टू अचीव a little bit of that college life. Okay, so आज I'm going to share with you guys my top prospective colleges ताकि you guys feel connected to my journey and I also be a part of your journey and you can take inspiration from my list also and आप लोग भी सोच सकते हो if you want to go into these colleges. मैंने एक गंदी सी handwriting में list बनाई हुई है and I will share this with you all. मैं आपको दिखाऊंगी नहीं ये वाला पेज because you will not be able to understand, it is too dirty. But ओके तो बिकॉज आई एम अ गर्ल एंड आई हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स. तो सबसे पहला मेरा ड्रीम कॉलेज है डॉक्टर डी वाई पाटिल विद्यापीठ. तो डॉक्टर डी वाई पाटिल या फिर पद्मश्री डी वाई पाटिल, आई एम नॉट रियली श्योर, बट इट इज़ अ अमेजिंग कॉलेज. एंड ये बिल्कुल ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इट्स अ टोटल लग्जरी यूनिवर्सिटी. बिल्कुल करण जौहर वाली कॉलेज की वाइब्स आती हैं इस यूनिवर्सिटी से. एंड वाई डिड आई से इट्स माई ड्रीम कॉलेज? क्योंकि ये मेरे को सिर्फ सपनों में ही मिल सकता है. इट इज़ टू एक्सपेंसिव, इट इज़ सो एक्सपेंसिव. इसकी फीस लास्ट ईयर तक 27 लाख पर एनम थी, which I feel even funny just saying it out loud because I don't think I'll aim for this college, but it is a dream college like I said. So if you have that kind of a budget and if you're okay with spending that much amount on your bachelor's course, you can definitely go ahead with it. But Dr. D.Y. Patil Navi Mumbai या फिर Dr. D.Y. Patil Pune, there are two options. एक पुणे में है, एक नवी मुंबई में है. I prefer Navi Mumbai because it's closer to Bombay of course, and Bombay is the dream, isn't it? इसकी कट ऑफ जाती है around 2,20,000 या 2 lakh something इसकी कट ऑफ जाती है. तो it's a good cut off also. That means the students there are good in academics and they're also rich. So it's a good crowd. यहाँ का डीवाई पाटिल का जो स्टेडियम होता है, there is a नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम which is a very big stadium and वहाँ पे every kind of extra curricular that you can think of, it is happening in this college. Dances, dance competitions, debates, MUNs, sports, everything that you could think of an extracurricular that is happening in this college. ठीक है, it's a very good college. अच्छा, तो my second choice is Amrita Vishwa Vidyapeetham, Faridabad. That is the reason that I have taken this college as a option is because it's very close to my house. I live in Delhi and Faridabad is like less than an hour away from here. तो इस वजह से Faridabad is a very good option for me and Amrita Vishwa Vidyapeetham is the biggest brand for medical education in India. इसकी जो actual जो original branch है that is in Coimbatore, Tamil Nadu and it is at 7th rank all over India. तो इसकी NIRF ranking is 7 all over India. तो they have a high standard that they have to live up to. दो जो फरीदाबाद वाली branch है, it is relatively newer. तीसरा साल है उसका, तो we will be the third batch in this college. तो it is relatively new, but it is a great college and they have a big standard that they have to live up to. I visited this college last year. इसकी cut off I think 250 to 3 lakh तक जाती है and I visited this college last year and the thing that I found in this college is the campus is huge, the infrastructure is amazing, it's totally like I would say it's a very good college. थोड़ी मेरे को जो problem लगी because the campus is huge and the hospital is huge. The hospital is 2,600 bedded hospital and it has a helipad. I mean, can you imagine the hospital having a helipad? That's because ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या कोई इमरजेंसी केसेस होते हैं तो उसके लिए दे रिक्वायर अ हेलीपैड, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होता है. तो इट्स अ वेरी बिग हॉस्पिटल, 2,600 बेडेड हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है. बट बिकॉज इट्स रिलेटिवली न्यू एंड बिकॉज द हॉस्पिटल इज वेरी बिग, बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज प्रिटी एम्प्टी व्हेन आई वेंट देयर. आई मीन पेशेंट्स थे बट भरा हुआ हॉस्पिटल नहीं था. जैसे GTB हो गया, एम्स हो गया, गंगाराम हो गया, मैक्स हो गया, यशोदा हो गया, ऐसे हॉस्पिटल्स भरे हुए रहते हैं, लाइन लगी होती है ऐसे हॉस्पिटल्स में. यहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई थी. इट वॉज रिलेटिवली खाली हॉस्पिटल एज कम्पेयर टू डीवाई पाटिल. दिस इज जस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज exactly like D.Y. Patil, very good, very large, and Faridabad is such a growing area and it is close to Delhi and anything close to Delhi is good, right? So it's a good college, you can definitely think of going here.
द ओनली थिंग इज इट्स रिलेटिवली न्यू, तो थोड़ा खाली खाली है अभी वो, अभी उतना भरा हुआ कॉलेज नहीं है, बच्चे भी कम है बिकॉज 2 ही तो बैच हुए एमबीबीएस के, 150 300 बच्चे, एंड एमडी एंड एमएस तो है ही, बट या यू विल बी द थर्ड बैच, तो उतने सीनियर्स भी नहीं है। यूजली जो फेस्ट वगैरह होते हैं दैट इज ड्यू टू द सीनियर्स अरेंज करते हैं ऐसी चीज़ें, बट यहाँ पे जब सीनियर्स ही नहीं है तो मज़ा क्या कॉलेज का। बट इट इज़ वेरी क्लोज टू माई होम, सो आई एम कंसिडरिंग दिस कॉलेज। माई नेक्स्ट चॉइस इज कलिंगा। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी KIIT, like IIT, like VIT, like MIT, इट्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इट्स अमेजिंग यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा इसकी ब्रांड वैल्यू है। दिस इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर, ओडिशा। तो द ओनली प्रॉब्लम विद दिस कॉलेज इज द लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे ऑफकोर्स उड़िया सीखनी पड़ेगी लोगों को। अगर आप साउथ इंडियन हो, अगर आपको उड़िया आती है, इफ यू हैव बिन टू ओडिशा देन यू विल प्रोबेबली नो बेटर। आई हैव नॉट बिन टू ओडिशा, तो आई डोंट नो मच अबाउट दैट प्लेस कि कैसी जगह है, बट फ्रॉम वॉट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल आई नो हु आर लिविंग देयर, इट्स अ वेरी गुड सिटी। ऑफकोर्स उसमें दिल्ली वाली या फिर मुंबई वाली मेट्रोपॉलिटन सिटी वाली वाइब नहीं है, बट इट इज अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर यू इफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड अगर आप नॉर्थ इंडियन हो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। इट्स अ गुड कॉलेज। आई विल से आप जा सकते हो कलिंगा। कलिंगा इज अ गुड चॉइस, एंड द ओनली थिंग इज लैंग्वेज बैरियर। अब आप कर्नाटका जाओगे विच इज द मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे भी आपको कन्नड़ तो सीखनी पड़ेगी, तुल्लू, मलयालम, कन्नड़, ये सब लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी क्योंकि वहाँ पे लोकल पेशेंट आता है। सिमिलरली यहाँ पे उड़ीसा में आपको उड़िया सीखनी पड़ेगी, बट ओडिशा इज अ वेरी गुड प्लेस। वहाँ के लोग बहुत स्वीट होते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस, एंड सिटी है यार, उसमें स्टारबक्स, कैफे कॉफी डे सब कुछ होगा, तो कलिंगा इज गुड। देन वी हैव KS हेगड़े, मैंगलोर। तो मैंगलोर इज इन कर्नाटक, ऑफकोर्स इट इज क्लोज टू मणिपाल आई थिंक। मैंगलोर में थोड़े नॉर्थ इंडियंस होते हैं, बट ऑफकोर्स वहाँ का पेशेंट पूरा वहीं का होगा, तो हर जगह कन्नड़ लिखी होती है या फिर और जो वहाँ की लैंग्वेज है वो लिखी होती है। वहाँ पे यूजली अगर आप इंग्लिश में वेल स्पोकन हो तो यू विल हैव अ गुड टाइम देयर, बिकॉज वहाँ पे कन्नड़, तुल्लू, मलयालम ये लैंग्वेजेस हैं लोकल पेशेंट्स के लिए जो आपको सीखनी पड़ेंगी। टू ट्रीट पेशेंट्स आपको उनकी भाषा आनी चाहिए। अगर आपको समझना है कि ये पेशेंट बोल रहा है मेरे को स्टमक एक है, मेरे को बैक एक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस इन देयर लैंग्वेज, ठीक है। तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे इफ यू गो देयर। तो KS हेगड़े इज ऑल्सो गुड चॉइस, एंड अच्छी ठीक ठाक कॉलेज लाइफ है यहाँ पे, इट्स अ गुड कॉलेज लाइफ, एंड दैट्स देयर। And then my next option is Jolly Grant. तो Jolly Grant is very famous, it is very reputed, it is in Dehradun, and इसका actual नाम है Himalayan Institute of Medical Sciences, but because it is close to the Jolly Grant airport, that is why it is very famous with the name Jolly Grant. It is a very reputed college. The only problem with this college is यहाँ पे academics के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जाओगे, there is a freshers, then 5.5 साल बाद there is the farewell, there is nothing in between. The university is miles away from the medical college. तो जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो बहुत दूर है मेडिकल कॉलेज से, एंड इतनी ज़्यादा अकेडमिक्स में एमबीबीएस की पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है, यू विल नॉट हैव द टाइम टू गो टू द यूनिवर्सिटी एट ऑल। तो इस वजह से यहाँ पे लिटरली कुछ नहीं होता पढ़ाई के अलावा, सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट कॉलेज, एंड यूजली यहाँ पे फीमेल ज़्यादा जाती हैं बिकॉज इट्स अ स्ट्रिक्ट कॉलेज, तो पेरेंट्स भेजते हैं, लड़कों के पेरेंट्स उनको इतने स्ट्रिक्ट कॉलेज में भेजते नहीं है। तो that's there, and they also have a uniform which I really didn't like. इनकी यूनिफॉर्म इज फॉर द the first year students, it is a blue kurta with a white salwar and a blue chunni. That's what I've heard from it. तो एंड सेकेंड ईयर से इट्स अ ग्रे कुर्ता। तो पूरे 5.5 साल ब्लू या फिर ग्रे कुर्ता आपको पहनना पड़ेगा, पूरे 5.5 साल, एंड इट्स वेरी स्ट्रिक्ट कॉलेज। प्रोस्पेक्टिव डॉक्टर्स हैविंग टू वेयर सच अ यूनिफॉर्म इज वेरी बैड अकॉर्डिंग टू मी। एंड चलो दैट असाइड, यूनिफॉर्म असाइड, इट्स अ गुड कॉलेज, अकेडमिकली अच्छा है, बट यहाँ पे अकेडमिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है, दे हैव नथिंग। एंड ऑल्सो यहाँ पे स्कूटीज एंड बाइक्स अलाउड नहीं होती, गाड़ियाँ तो अलाउड होती ही नहीं है, एंड गाड़ियों को चलो छोड़ो, एक स्कूटी या बाइक, 2 व्हीलर भी अलाउड नहीं होता, यू कैनॉट कीप इट ऑन द कैंपस, यू कैनॉट राइड ऑन इट। एंड आई वॉज लाइक, ऐसा कौन सा कॉलेज होता है जहाँ लड़के बाइक नहीं चलाते या फिर जहाँ पे स्टूडेंट स्कूटी पे घूमते फिरते नहीं है। ये तो पहली बार आई हैव सीन अ कॉलेज जहाँ पे 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। बट दैट असाइड, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। ये निर्फ रैंकिंग में स्टैंड नहीं होता है, बट इन जनरल इट्स अ गुड कॉलेज, ठीक है। निर्फ रैंकिंग में नहीं आता, बट हमेशा रैंक के हिसाब से नहीं जाया जाता, रेप्यूटेशन के हिसाब से जाया जाता है, एंड इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। निर्फ में इसलिए नहीं आता कहीं बिकॉज अकेडमिक्स के अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे, but it's a good college. It's a very, very, very good college. Then my next option is SRM Institute of Science and Technology. SRM Institute of Science and Technology is in Chennai, Tamil Nadu. Now this is a very, very, very good college. ठीक है, SRM is like South का DY Patil. It's that good. Infrastructure तो amazing है ही, college life भी यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे fests होते हैं। The only problem is for North Indians it's very far. It's in Tamil Nadu. It's in South India. तो cultural barrier होगा, language barrier होगा। बहुत ही अच्छा एरिया में है, मिडल ऑफ द सिटी में है। कहाँ पे था, सॉरी आई फॉरगॉट, चेन्नई इज द कैपिटल राइट, तो चेन्नई के मिडल में है ये, एंड बहुत ही अच्छे एरिया में है, आसपास बहुत अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड एरिया है। सिटी लाइफ
अगर आपको चाहिए इन साउथ इंडिया, यू कैन डेफिनेटली गो टू SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इट्स अ ग्रेट कॉलेज. द ओनली ड्रॉबैक इज, अगर आप नॉर्थ इंडियन हो, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर. वहाँ पे जो लोकल लोग हैं सब वहाँ का लैंग्वेज बोलते होंगे, एंड देर इज ऑफकोर्स द कल्चरल बैरियर. The food will be more of South Indian food, and if you're too much into roti sabzi, maybe it may be difficult for you. I have not been to Chennai ever, so I don't know, but if you're comfortable in South India, definitely go there. एंड साउथ इंडियंस के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है. अगर आप तमिलनाडु के आसपास रहते हो, इन केरला एंड अदर नेबरिंग स्टेट्स, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. यहाँ पे कॉलेज लाइफ अमेजिंग होगी आपकी. अच्छा, इसके बाद माई लास्ट 2 कॉलेजेस आर दत्ता मेगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन वारधा. इट्स एन अमेजिंग कॉलेज. वारधा, आई डोंट नो वेयर वारधा इज. आई विल हैव टू रिसर्च अपॉन इट दैट महाराष्ट्र में वारधा कहाँ पे है एंड क्या कनेक्टिविटी है उसकी दिल्ली से. बट इफ यू आर लिविंग इन महाराष्ट्र, यू शुड डेफिनेटली गो टू दिस कॉलेज, दत्ता मेगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. दत्ता मेगा तो इतना बड़ा ब्रांड है एंड इट्स सच अ गुड कॉलेज. आई मीन इतना अच्छा यहाँ पे पेशेंट फ्लो होता है. 1500 बेड का हॉस्पिटल है, 1500 बेड्स, 23rd रैंक है, एंड दिस कॉलेज इज ऑलवेज कंपीटिंग विद मौलाना आजाद इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग. कभी मौलाना आजाद 23 आ जाता है, कभी दत्ता मेगा 23 आ जाता है. तो रैंकिंग्स में तो इट्स ऑलवेज कंपीटिंग विद मौलाना आजाद. तो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. अच्छा, तो नाउ माई लास्ट ऑप्शन. बहुत ही अच्छा कॉलेज है. जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग इट इज माई लास्ट ऑप्शन, बट दिस could be your first option. तो अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो, एंड इफ यू गेट इनटू दिस कॉलेज ना, very good for you because it's a very good college. It is one of the most famous institutes of India, that is MS Ramaiah Medical College. ये कर्नाटका का, which is the medical capital of India, कर्नाटका को बोला जाता है informally the medical capital of India, and कर्नाटका का ये top first कॉलेज है. बैंगलोर में मिडल ऑफ द सिटी में MS Ramaiah Medical College. बहुत अच्छा कॉलेज है. इसमें गवर्नमेंट सीट्स भी होती हैं, प्राइवेट सीट्स भी होती हैं, अदर सीट्स भी होती हैं और NRI सीट्स भी होती हैं. द गवर्नमेंट सीट्स आर 1,57,000 पर एनम की फीस वाली. प्राइवेट सीट्स आर 25 लाख पर एनम वाली, एंड NRI आर आई थिंक 45 लाख पर एनम वाली. तो MS रमैया मेडिकल कॉलेज बहुत ही अच्छी जगह में लोकेटेड है. बैंगलोर तो पूरी दुनिया जाना चाहती है. बैंगलोर इज सिटी लाइफ एट द बेस्ट, एंड इट इज़ इन द मिडल ऑफ द सिटी. कहीं आउटस्कर्ट्स में नहीं है, बीच में है. आसपास स्टारबक्स, कैफे कॉफी डे, Puma, malls, everything that you expect from a city, you'll get it in नियर दिस कॉलेज. एंड कैंपस भी बहुत अच्छा है. यहाँ पे बीटेक भी होती है, यहाँ BBA भी होता है. ऑल काइंड्स ऑफ अदर कोर्सेज आर ऑल्सो देयर इन द यूनिवर्सिटी. फेस्ट भी होते हैं, एवरीथिंग. द ओनली प्रॉब्लम विच इज अ बिग प्रॉब्लम विद इवन बिगर कॉन्सिक्वेंसेज इज दैट यहाँ पे बॉन्ड होता है 1 साल का. तो 4.5 ईयर्स की पढ़ाई, देन 1 ईयर की इंटर्नशिप, एंड देन यू विल हैव टू डू 1 ईयर ऑफ सर्विस इन देयर रूरल हॉस्पिटल. तो 1 साल का यहाँ पे बॉन्ड होता है. एंड इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू गो अहेड विद दिस सर्विस, देन आपको बॉन्ड पेनल्टी देनी पड़ेगी ऑफ 1 करोड़. तो यू विल हैव टू गिव अ बॉन्ड पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ इन दिस कॉलेज. एंड अगर आप नहीं दोगे बॉन्ड पेनल्टी, देन यू विल हैव टू डू द कॉलेज, एंड आपका 1 साल वेस्ट ही होगा, बिकॉज इट्स लाइक टेकिंग फ्री लेबर फ्रॉम स्टूडेंट्स. आई डू नॉट बिलीव कि MBBS के बाद बॉन्ड होना चाहिए. दैट्स वेरी बैड ऑनेस्टली. MD के बाद बॉन्ड हो तो बात डिफरेंट है, बट MBBS के बाद बॉन्ड होना इज लाइक प्लेइंग विद स्टूडेंट्स का लाइफ, बिकॉज दे एक मोमेंटम होता है. आपने 5.5 साल पढ़ाई करी, देन यू कैन गिव द नीट PG एग्जाम एंड यू विल क्लियर इट. बट अगर आपने क्लियर कर भी लिया, देन बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड यू विल हैव टू स्टे इन द कॉलेज, और यू विल हैव टू गिव द बॉन्ड पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ रुपीज, which is a very big amount, and it's like a very bad situation for students, and this should not be happening. But that is the case of MS Ramaiah Medical College, which is the top institute of India. They have a bond policy, तो आपको बॉन्ड पेनल्टी देनी पड़ेगी 1 करोड़ की, या फिर आपको रूरल सर्विस करनी पड़ेगी एंड अपना 1 साल खराब करना पड़ेगा, एंड फिर से नीट PG का एग्जाम देना पड़ेगा. तो this is the reason it's my last option, but this could be your first option if you're that affluent and you're ready to give 1 crore rupees, and if you're ready to do the 1 year rural service, तो it's a very good college. All in all, कर्नाटका का तो बेस्ट है, and that means इंडिया का भी ये बेस्ट में ही आता है. It is ranked at 37th all over India. So it's a very good college. So these were my top prospective colleges, and I hope you guys liked this video, and I hope you guys found it helpful. And if you guys are also thinking of going to any of these colleges, let me know in the comment section down below so that we can discuss a little bit, because I'm really scared about my college का एडमिशन एंड प्रोसेस क्या है. शुड आई हायर अ काउंसलर? आई मीन गाइज, दीज काउंसलर्स जो ये नीट काउंसलिंग करते हैं, दे आर सच स्कैमर्स. आई मीन, एक तो आई वेंट टू अ काउंसलर हु वाज लाइक अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और समथिंग, एंड उसने पूरी अपनी साइकोलॉजी मेरे पे झाड़ दी. एंड आई एम यूजली अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एफ्लुएंट पर्सन हु कैन नॉट, नोबडी कैन ईजिली शेक माई माइंड. बट उस बंदे ने ना ऐसा घुमाया मुझे. आई केम होम सो स्कैर्ड. ही वॉज लाइक,
24 लाख बच्चे हैं, 4 लाख क्वालिफाई करते हैं, 1 लाख सीट्स हैं, उसमें से 50,000 चली गई, 50,000 बची, एंड यू हैव टू फाइट फॉर दोज 50,000 सीट्स विद सो मैनी अदर स्टूडेंट्स. एवरीबडी 4 लाख स्टूडेंट्स, 5 लाख स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर दैट 50,000 सीट्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव कनेक्शंस, हम कॉल कर देते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. एंड ही वॉज लाइक आस्किंग 5 लाख पर कॉलेज, 5 लाख पर कॉलेज. तो सोचो अगर मैंने 10 कॉलेजेस उसको बोले होते, वो मेरे से 5 into 10 50 lakhs जस्ट फॉर एडमिशन मांग लेता. तो दीज काउंसलर्स आर भाई स्कैमर्स. ठीक है, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ माई सीनियर्स एंड एवरीबडी आई न्यू हु गॉट इन टू अ कॉलेज एंड ऑल ऑफ देम सेड वी डिड नॉट गो थ्रू अ काउंसलर, वी वेंट एट इट ऑन आवर ओन. तो आप लोग भी डू नॉट गो थ्रू अ काउंसलर अकॉर्डिंग टू मी. यूट्यूब वीडियोज देखो मेरी तरह, मेरी वीडियो देखो और लोगों की वीडियो देखो, जानो कैसे काउंसलिंग करते हैं. वंस आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द काउंसलिंग का प्रोसेस, आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट, ताकि यू गाइज कैन गो थ्रू दिस जर्नी विद मी. काउंसलर वगैरह हायर मत करो, दे आर स्कैमर्स. कोई मैनेजमेंट सीट नहीं होती अब इंडिया में मेडिकल के लिए. बीटेक वगैरह बीबीए के लिए होती हैं. हमारे एमबीबीएस में देयर आर नो मैनेजमेंट सीट्स. एक जो फॉर्म आएगा वो फॉर्म हम ऑनलाइन भरेंगे, दैट्स इट. रैंडम अलॉटमेंट प्रोसेस मशीन करती है, देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. इट्स नॉट लाइक कॉलेज में बैठा हुआ बंदा रिश्वत लेके मेरा नाम सेलेक्ट कर देगा, नहीं. इट्स अ अलॉटमेंट प्रोसेस जो मशीन के थ्रू होता है. तो देर इज नो सेंस इन गोइंग थ्रू दीज काउंसलर्स जो कहते हैं हम आपकी मैनेजमेंट सीट्स करा देंगे. मैनेजमेंट सीट्स आर अ टर्म ऑफ द पास्ट. अब मैनेजमेंट सीट्स का मतलब होता है प्राइवेट सीट, मतलब ज्यादा पैसे वाली सीट, विच यू गेट थ्रू रैंडम अलॉटमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स. अगर आपके मार्क्स नहीं होंगे, चाहे आप कितना ही पैसा दे दो, आपको वो नहीं मिलेगी. अगर आपकी रैंक नहीं होगी उस कॉलेज के हिसाब से, तो चाहे आप कितना ही पैसा दे दो, 50 लाख दे दो, 2 करोड़ दे दो, you will not get that seat unless and until you have the marks for it. ठीक है, तो do not go through any counselors, do not fall into that trap, and खुद रिसर्च करो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करो, रिसर्च करो, एंड बहुत ध्यान से काउंसलिंग का फॉर्म भरना. आई थिंक कर्नाटका की रजिस्ट्रेशन ओपन है टिल 10th of July फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस. आई एम ऑल्सो डूइंग दैट रजिस्ट्रेशन, आप लोग भी कर लो. एंड जैसे यूपी की रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी, अभी यूपी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आया है, तो एज सुन एज दोज रजिस्ट्रेशन विल ओपन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टू. तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स एंड लॉट्स ऑफ लव, एंड आई होप जो कॉलेजेस आप जाना चाहो वो कॉलेजेस आपको मिल जाए. आप लोग ने मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो, एंड आई होप वी हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड. लॉट्स ऑफ लव गाइज.